हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा था। पहली यूटिलिटी थी टोटल यूटिलिटी एंड आज हम पढ़ेंगे सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी? इन अ गिवन टाइम द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एक गिवन टाइम में जो टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज हो रहा है इंक्रीजिंग कंजम्पशन को इंक्रीज करने पर वो क्या कहलाती है? उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। हियर MUN इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, TUN equals to total utility of n unit, TUN minus 1 equals to total utility of n minus 1 unit. On marginal utility, we can see the effect of total utility of a change in the consumption, increase or decrease of a unit of commodity. If change in consumption is more than one unit, then marginal utility can be measured as follows. MU equals to change in total utility upon change in quantity of a goods consumed. Totality is the sum of marginal utility from all units of commodity. Now we can find relationship between total utility and marginal utility. The relationship between total utility and marginal utility can be explained with the help of following table. Units of banana 0, 1, 2, 3, 5, 6. Total utility 0, 10, 16, 20, 22, 22, 20. And marginal utility also given 0, 10, 6, 4, 2, 0, minus 2. First is when total utility increases at decreasing rate, marginal utility decreases. Then total utility is maximum, marginal utility will be 0 and total utility is decreasing, marginal utility will be नेगेटिव। ये तीन कंडीशन इसकी। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट में। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0। आफ्टर दैट टोटल यूटिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसे हम ग्राफ से भी समझते हैं। तो ग्राफ देखते हैं हम इसका रिलेशनशिप बिटवीन टोटलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर एज गिवन। द पॉइंट Q at which total utility is maximum, the marginal utility is 0 at point E. This point is called the point of satiety as shown at point Q in the figure. Before reaching this point, marginal utility is positive, whereas total utility increasing but at a diminishing rate. Second one is if the consumer continues the consumption of a commodity even after the point of satiety, then marginal utility becomes negative and total utility starts declining. ये ग्राफ है हमारा। अब ग्राफ से शो हो रहा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है। एक्स एक्सिस इज द क्वांटिटी ऑफ बनानाज एंड वाई एक्सिस द मार्जिनल यूटिलिटी derived from the bananas is depicted. The slope of marginal utility curve is shown sloping from the left to right, which shows the marginal utility of a commodity declines on its continuous consumption, and on consumption of fifth unit it becomes 0. TU curve which increases at a diminishing rate till point Q, point of satiety, and then starts declining. तो ये रिलेशनशिप थी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में। Our new topic is law of diminishing marginal utility. This law was proposed by Gaussian in 1854. It is called Gaussian's first law. Marshall gave a detailed analysis of this law.
Law of diminishing marginal utility is a universal law. This law is based on the behavior of a consumer, where the marginal utility of variable commodity decreases as he increases the consumption of any one commodity, keeping constant the consumption of all the other commodities. ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे कोई कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है, वैसे वैसे उसका कंजम्पशन तो बढ़ेगा, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या है, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सुधीर है, अब वह क्या है, भूखा है। अब उसे जैसे ही पहली रोटी सामने आती तो पहली रोटी जल्दी खा लेता है, फिर वो दूसरी रोटी की डिमांड करता है। अब दूसरी रोटी जैसे ही डिमांड करेगा वो भी इसका कंजम्पशन कर लिया। फिर तीसरी रोटी की डिमांड करता है। अब चौथी रोटी की डिमांड करने पर क्या कहता है, उसका पेट भर जाता है। फिर भी वह पांचवी रोटी की डिमांड करता है। इसका मतलब ये है कि उसको जो यूटिलिटी है वो अब उसकी ज़ीरो हो गई है। क्यों? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका कौन सा है, फोर्थ रोटी पर है। अब वो और आगे डिमांड करता है फिफ्थ रोटी की, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर कंजम्पशन करता है किसी कमोडिटी का, वैसे वैसे क्या होता है कि कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इन वर्ड्स ऑफ मार्शल, the additional utility which a person derives from an increase of his stock of a commodity diminishes with every increase in the stock that he already has। मार्शल ने भी कहा कि अदर थिंग कांस्टेंट रखें हम, मान लीजिए कि तो स्टॉक में होने वाला इंक्रीज जो वो एडिशनल टोटल यूटिलिटी ले रहा है वो क्या होगी, वो इक्वल होगी, और उसका क्या होगा, एडिशनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अ सिचुएशन अराइजेज व्हेन ही डज नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ additional unit of a commodity. If a consumer still persists to consume that commodity, then the marginal utility derived from that commodity becomes negative. Economics call this tendency as law of diminishing marginal utility। तो जैसे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी तो मार्जिनल जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसमें टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। अब वो और जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस लॉ की कुछ एजम्पशंस हैं। अब वो एजम्पशन क्या है देखते हैं। हर लॉ की कोई ना कोई एजम्पशन का मतलब होता है मान्यता, कुछ ना कुछ मान करके चलता है। इसमें पहली एजम्पशन है द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज रेशनल। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड, यूटिलिटी इज़ मीजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड वन इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज। फोर्थ, द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड शुड बी ऑफ अ सुटेबल साइज एंड दे शुड बी अलाइक इन साइज एंड क्वालिटी। होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जो कंज्यूमर कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, जो उसकी जो कमोडिटी है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन इज़ कंटिन्यूस विदाउट एनी टाइम इंटरवल। तो ये जो प्रोसेस कंजम्पशन का होता है वो कंटिन्यू होता है बिना किसी टाइम इंटरवल के। नेक्स्ट है द इनकम हैबिट्स एंड फैशन ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट इन द गिवन टाइम। जब कंज्यूम कर रहा है तो इनकम हैबिट्स और फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी एजम्पशंस थी। अब इस लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है देखते हैं। फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Second is this law is used in public finance. We know that the marginal utility of money is less for rich and more for poor. Thus, social welfare can be increased by imposing tax on the rich and spending that money on
poor. Third is the diamond water paradox can be explained with the help of this law. According to the paradox, water which is essential for life is cheaper, while diamond which is not essential for life expensive. To understand this paradox, water which is essential for life has more totality than that of diamond, but the price of a commodity depends on marginal utility and not on its total utility. As we consume water in a large quantity, the marginal utility of the last unit is very less. Thus, we are ready to give less price for the last unit of water. Since all units of water are similar, we gave less price of additional units. Whereas diamonds are found in scarcity, so their marginal utility of last unit is very high. Hence, they have high price. दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थैंक यू, गुड बाय।